Morning to all of you. Today I'll start lesson 5, that is working with queries. You all know the meaning of working. Here I'm going to explain what is the meaning of queries, what it means, for which purpose it is required, what is the use of queries, okay, and why. Very important thing कि why we are going through this chapter 5. What is the requirement of this chapter 5? So students, let me tell you, earlier you have gone through lesson 4. That is working with tables. And मैंने आपको बताया था कि tables are stored in a database where you are keeping all your record in a systematic way, in an organized way. So whatever the record you had kept in your table, आप जो भी रिकॉर्ड आपने टेबल में रखा है, आप उसको निकालने के लिए आपको उसको फिर से देखना है, उस रिकॉर्ड में कोई एडिटिंग करनी है, कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, तो आप टेबल में किस तरह से उन डेटास को निकालोगे, अपने डेटाबेस से उस टेबल के रिकॉर्ड को किस तरह से आप निकालोगे, तो विद द हेल्प ऑफ क्वेरीज. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू रीड दिस क्वेरी चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज अ क्वेरी. जस्ट लेट मी एक्सप्लेन स्टूडेंट्स. हियर सपोज आई हैड आस्क्ड व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम? So this is a query. मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? What is your name? Your reply must be, ma'am, my name is something something, whatever, right? तो आपने क्या किया? You are a human. आपने क्वेश्चन सुना and immediate मुझे रिप्लाई किया. But in your table, जो भी डेटा आपने स्टोर करके रखा हुआ है, वो आप कैसे रिट्रीव करोगे? किस तरह से निकालोगे? तो you are going to retrieve your data from table with the help of these queries. Understand? Now, just see what we will learn in this chapter. Setting a relationship between tables, very important. Then what are forms, creating a query, and then report. These 4 points we will cover in this chapter. Now here, the database of any organization may contain huge amount of data. Earlier I had explained what is database. Database where we are keeping a record in an organized manner, right? May contain huge amount of data. What is a data, students? Earlier I had told a data is any raw fact or figure, or you can say कि data is an incomplete information, right? Moreover, it may consist of multiple tables. हो सकता है उसमें बहुत सारे tables हो आपके database में, या एक single table भी हो सकती है. When the number of records in a table increases, when a number of record, जब बहुत ज्यादा records एक table में increase होते हैं, then what will happen? It become an uphill task for any user to extract a specific record from the table. Suppose you have 100 records in a table, right? You want record number 50. Then how you will get? You will get with the help of this query. Understand? LibreOffice Base provides us a solution for this problem through queries. Queries plays an important role for retrieving the data. Got it? A query is a database object that helps us to retrieve and view information from one or more database tables that meet a specific condition or criteria which you define. क्या करना है? हमें criteria define करना है. Suppose we want roll number 5 or we want the roll number in between 4 to 9. It means, what it means, students? In between 4 to 9 means 5, 6 and 7, 8. You want to see the record of 5, 6, 7 and 8 roll number. So, on the basis of your requirement, you will create query and then your database will show the result of roll number 5, 6, 7 and 8. See, the information retrieved on the basis of a specific criteria in the query is stored in a separate table called query table. आपने जो भी डेटा अपने डेटाबेस से रिट्रीव किया है वो कहाँ सेव हो जाएगा? क्वेरी टेबल में. Now, what is a query? Very important question. In general, a query is like a simple question. I had told you all that what is your name, what is your roll number, where do you live, and so on. These all are what? These all are queries. But here, in this chapter, what is a query? Is a like simple question that we ask to find a specific information from the database. Where? From the database. Similarly, in LibreOffice Base, when you build a query,
you are defining specific search conditions. You can use queries to view changes, summarize and analyze specific data in different ways. एक ही particular data को आप different ways में देख सकते हैं. उसके लिए क्या use करेंगे आप? Queries. In our daily life, we make several type of queries to get specific information, right? For example, which student are scoring above 85% marks, right? This is also a query. Which student live in sector 4, which student live in Allahabad, and so on. We can make quick decisions depending on that criteria. Let us understand the concept of queries with the help of given example. What is the example? See this very carefully. In the student table, we have record of students of class 8th as well as class 9th. Right? How many classes we have? We have class 8th and 9th students record. Suppose we want to extract the record of students of class 8th and 9th whose reside in Panchkula, means whose address is Panchkula and Chandigarh. We can find this with the help of queries. How we will find students? With the help of queries. That the students of class 8 and 9, those who are living in the particular area, we will get from the database with the help of queries. Queries are made on tables and the result are also displayed in tables. That is in a group of rows and columns with the set of records that matches the given conditions. Okay students, now next topic is setting a relationship between tables. Before explaining this topic, let me make this clear. What is the meaning of relationship and why we are going to create a relationship between tables? It is not a table, it is tables. Why it is plural, students? Because this relationship will be held in between more than one tables, right? Means in between two tables. See here, two tables are mentioned. So I will show you that how we will create relationship in between those two tables. Okay. And now next question arises, what is the requirement of this relationship? So for example, students, I am just giving the example of your class. Suppose you are a student of class 8C, okay, and you don't have any friend in your own class or anyone which is very close to you. That student were absent on that day, which day you were also absent, right? So what will happen? आपका वो फ्रेंड नहीं आया जिस दिन आप भी नहीं गए. You need any notes, और आपके सेक्शन में कोई भी स्टूडेंट आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है. नाउ अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है किसी अच्छे फ्रेंड से, आपकी किसी और अदर सेक्शन की, राइट, 8C का कोई स्टूडेंट है, आप हैं, और आपका कोई फ्रेंड 8th A में, B में एंड सो ऑन, ठीक है, 8th के अगर अलग अलग सेक्शंस में है, तो अगर आपने ये रिलेशनशिप मेंटेन की है, मींस अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग की है अदर सेक्शन से, देन इजीली यू आर एबल टू टेक नोट्स फ्रॉम द अदर सेक्शन, राइट. तो हियर what is the sections? Here this is table 1 and this is table 2, right? So this is the requirement. Why this relationship is required? To exchange the data, right, or to view the data. ठीक है, तो दो भी चीजें यहाँ पे हैं. आप इजीली किसी एक टेबल से दूसरे टेबल का डेटा इजीली देख सकते हो, तो दैट्स व्हाई रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट. Relationships are links that associates a field in one table with the same field in another table. Understand the line meaning of this line, students? क्या कह रहा है कि links that associate a field. टेबल एक्चुअल में रिलेशनशिप्स क्या है? लिंक्स हैं जो कि दो टेबल्स के बीच में मेंटेन होती हैं. ठीक है, दो टेबल्स के बीच में मेंटेन होती है सेम फील्ड. इसका मतलब आप समझिए, दिस इज योर टेबल 1, ओके, having field roll number, name and section, right? This is your table 1. And another table in which you want to establish relationship is table 2, right? This field must be common, means एक field common होगी जो कि दोनों tables में common होनी चाहिए. यहाँ पे आपने सपोज हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स कुछ मार्क्स की एंट्री कर रखी है, ठीक है, हिंदी एंड मैथ्स, आप ठीक है, हिंदी एंड
मैथ्स. सो रिलेशनशिप यहाँ पे क्या मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि सेम नेम इन बोथ हियर वन टेबल विद द सेम फील्ड इन अनदर टेबल. सबसे पहली कंडीशन क्या है? व्हाट इज आवर फर्स्ट कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन इज कि दोनों में क्या होनी चाहिए? सेम फील्ड. व्हाई सेम फील्ड इज रिक्वायर्ड? एंड व्हाट इज फील्ड? What is field, students? See here it is mentioned. What is field? This column. This column is known as field, right? This column is known as field. So this column roll number both are common in both the tables. So first condition fulfill हो गई कि दोनों में क्या होना चाहिए? Same field name होना चाहिए, right? Now next is in base you can store data in multiple tables. To bring that information together, you need to define relationships between the tables. ठीक है, आपको क्या करना होगा? रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा दोनों टेबल्स के बीच में. Once you have defined relationship between the tables, data from both the tables can be used either by query, by form or report. क्या मतलब निकल के आ रहा है यहाँ पे कि हमने रिलेशनशिप अगर स्टैब्लिश करा दी दोनों टेबल्स में, तो किसी भी टेबल से इधर फ्रॉम टेबल 1 और टेबल 2 दोनों टेबल्स में किसी एक टेबल से हम दोनों टेबल का डेटा यूज कर सकते हैं. किस लिए? क्वेरी जनरेट करने के लिए, फॉर्म जनरेट करने के लिए या रिपोर्ट मेंटेन करने के लिए. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज अ रिलेशनशिप वर्क्स by matching a field with the same name in both tables. मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि दोनों टेबल्स में सेम नेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर फील्ड आपकी कॉमन थी. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 8th C का डेटा है और ये 8th A का डेटा है. दिस विल नॉट वर्क, राइट? अगर आपने एक टेबल में 8th C के स्टूडेंट्स की एंट्री करी है, अनदर टेबल में 8th A के स्टूडेंट्स की एंट्री है और आप चाहते हैं कि मैं इसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करूं, तो वो रिलेशनशिप बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए? दोनों कॉमन होनी चाहिए, दोनों डेटा सेम होना चाहिए. डेटा सेम होने का क्या मतलब है कि रोल नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, ये तो कॉमन होगा. ये आप समझ गए? 1 2 3 4 क्या है? दोनों में कॉमन है. बट स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हर सेक्शन में ये रोल नंबर्स 1 से जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबके कॉमन होते हैं. ठीक है, तो ये बट यहाँ पे क्या रोल नंबर 1 सपोज इन 8th C अदिति इज देयर. ओके, रोल नंबर 1 इज अदिति एंड हियर आयुष. तो क्या ये दोनों स्टूडेंट्स के नेम मैच हुए? बिल्कुल नहीं, ये दोनों मैच नहीं हुए. तो अदिति का नेम एंड सेक्शन C, ठीक है, 8th C. अदिति का क्या सेक्शन है? C है. अब हिंदी में यहाँ पे रोल नंबर 1 जिसको बिलोंग करता है वो कौन है? आयुष. इसे मिले सपोज 10 मार्क्स और अदिति को 80 मार्क्स. तो क्या हो गया? दोनों में मिसमैचिंग हो जाएगी. तो इट मीन्स कि दोनों टेबल्स में क्या होना चाहिए? डेटा सेम होना चाहिए. मीन्स नेम सेम होने चाहिए. रोल नंबर अगर 1 अदिति का है तो यहाँ पे भी रोल नंबर 1 पे अदिति ही होनी चाहिए. तभी आप जो भी रिलेशनशिप मेंटेन करोगे उसका यूज होगा. अंडरस्टैंड? नाउ इन मोस्ट केसेस दीज मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की. सभी केसेस में क्या होता है? जो मैचिंग फील्ड मीन्स रोल नंबर, ये प्राइमरी की तरह एक्ट करते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज प्राइमरी की? व्हाट इज प्राइमरी की? स्टूडेंट्स अर्लियर आई हैड एक्सप्लेन कि प्राइमरी की क्या होता है, which is having unique value. Unique term must be there. So suppose in 8th C रोल नंबर 1, जिसका भी रोल नंबर 1 है वो यूनिक है. अगर आपका रोल नंबर 1 है, अदिति मैंने यहाँ पे लिया है, तो अदिति का रोल नंबर 1 है तो वो हमेशा यूनिक होगा. अदिति के साथ आद्या का रोल नंबर 1 नहीं हो सकता. इट मस्ट बी रोल नंबर 2 और समथिंग एल्स, राइट? इट मीन्स कि दोनों के रोल नंबर्स कॉमन नहीं होंगे. मीन्स आपके सभी के सेपरेट रोल नंबर्स क्या है? यूनिक है. आप रोल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, किसी का भी रोल नंबर रिपीट नहीं होगा. सभी की वैल्यूज क्या होंगी? यूनिक होंगी. तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या है? रोल नंबर फील्ड को हमने प्राइमरी की तरह ट्रीट किया. नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ प्राइमरी की? इट वर्क्स दैट इट identifies each record uniquely in a table and a foreign key in another table. Students, what is a foreign key? Very important. आपको प्राइमरी की समझ में आ गया, having unique value. Now understand foreign key. Okay? What is foreign key?
सी हियर, इस टेबल में रोल नंबर फील्ड क्या है, प्राइमरी की है। इसी अनदर टेबल में जब ये यहाँ से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा तो एक्चुअल में क्या होगा कि ये प्राइमरी की इस टेबल के लिए फॉरेन की की तरह एक्ट करेगी। एक्चुअल में फॉरेन की होता क्या है, फॉरेन टर्म आपने सुना होगा, फॉरेनर सुना होगा, मींस आउटसाइडर, जो बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो इस टेबल के लिए आउटसाइडर हो गई, तो इट मींस कि जो प्राइमरी की टेबल 1 की है वो टेबल 2 के लिए फॉरेन की तरह एक्ट करेगी। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ सी, टू क्रिएट अ रिलेशनशिप मेक 2 tables, one with the name students table that holds information about students such as their roll number, first name, class, address, city, etc. And other with the name marks table that holds the information about the student's roll number, percentage and grade. Here I have created these 2 tables, students. See, first is having name student, another is having name marks, right? This field contains roll number, this contains first name, this class, this field contains roll number, percentage and grade, right? Now today I will show that how we will create relationship in between these 2 tables. Okay, see, first what we have to do, open the database window and select relationship option from the tools menu. See, this is the dialog box, add table dialog box. How you will add a table, this will show. Then what you have to open, anyone, student or marks, आपको ओपन करना है। द एड टेबल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड टेबल एंड क्लिक ऑन द एड बटन। पहले स्टूडेंट या मार्क्स जो भी आपको सेलेक्ट करना है आपने सेलेक्ट किया, देन एड पे क्लिक करना है, दिस इज योर एड बटन। ओके, देन द सेलेक्टेड टेबल विल अपीयर एज अ स्मॉल विंडो इन द रिलेशन डिजाइन विंडो। देन लाइकवाइज एड अनदर टेबल टू द रिलेशन डिजाइन विंडो। ठीक है, आपको क्या करना है, मार्क्स ऐड कर लेना है, देन स्टूडेंट टेबल को भी ऐड कर लेना है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज एड टेबल डायलॉग बॉक्स। ये टेबल डायलॉग बॉक्स आपने क्लोज कर देना है। देन ड्रैग द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल। अब स्टूडेंट्स ड्रैग, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैग? ड्रैग मीन्स खींचना किसी चीज को। सपोज आप क्लास में क्या करते हो, आपके पास स्टूल नहीं है, आपने क्या किया, उस स्टूल को खींच के ले जा रहे हो। ठीक है, ड्रैग करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हो, तो दैट इज ड्रैगिंग, मीन्स विदाउट लिफ्टिंग। आपने उसको उठाया नहीं, आपने क्या किया, माउस पॉइंटर उस पर रखा और प्रेस किया और तब तक ड्रैग किया जब तक कि वो शिफ्ट होके दूसरी जगह पहुंच नहीं जाता है, राइट? तो आपको क्या करना है, ड्रैग द प्राइमरी की। प्राइमरी की हमारी क्या है, रोल नंबर। दोनों ही कंडीशंस में, दोनों ही फील्ड्स में क्या है, रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, तो प्राइमरी की क्यों क्या करना है, ड्रैग करना है, रोल नंबर का आपको ड्रैग करना है टू द पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल मीन्स जिस टेबल में आपको इसको रिलेशनशिप मेंटेन करानी है, एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल, एंड ड्रॉप इट ओवर द सेम फील्ड इन द चाइल्ड टेबल, जस्ट लाइक मार्क टेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, रोल नंबर ड्रैग करना है और कहाँ ड्रॉप करना है, चाइल्ड टेबल में। A line linking the 2 tables will appear indicating that both have been linked on the basis of common field. ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, रिलेशन डिजाइन विंडो इस तरह से शो होगा। स्टूडेंट का रोल नंबर आपने ड्रैग किया और कहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया, मार्क्स वाले टेबल में। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, रोल नंबर को ड्रैग किया और मार्क्स वाली फील्ड पे ड्रॉप किया, तो ये रोल नंबर और मार्क्स के बीच में आपको एक ऐसा रिलेशनशिप शो करेगा, राइट? Then students, now select the save option from the file menu to save the relationship. आपने रिलेशनशिप मेंटेन कर दी, फिर आपको सेव ऑप्शन चूज करना है और इस रिलेशनशिप को आपको सेव कर देना है। ठीक है, आफ्टर सेविंग द रिलेशनशिप, हाउ द टेबल विल अपीयर, सी हियर, you can modify the data stored in the link table by using the update and delete option present in the relationship dialog box under the new relation icon. This is a small icon, this is very small, are you able to see? ये क्या है, आपका new relation icon है। Suppose a student has left the school and the data need to be modified. Definitely students, अगर आप हमारी क्लास से क्विट करते हो तो हमें उसको अपडेट करना होता है,
सपोज आई एम हैविंग 51 स्टूडेंट्स, कोई एक स्टूडेंट क्विट कर जाता है स्कूल से, स्कूल में नहीं पढ़ना है, आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो हमें उस 51 वाले स्टूडेंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है अपने डेटाबेस से। सो यहाँ पे क्या करना होगा, उसको मॉडिफाई करना होगा टेबल को, और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को वहां से डिलीट करना होगा। तो बाय सेलेक्टिंग द डिलीट कैस्केड रेडियो बटन, द रिकॉर्ड्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी रिमूव्ड। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, कैस्केड रेडियो बटन दिया हुआ है, अपडेट कैस्केड एंड डिलीट कैस्केड। आपको डिलीट पे चूज करना है। रेडियो बटन इज चेक बॉक्स, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी आप समझ लो कि दिस इज योर चेक बॉक्स, ओके, एंड दीज आर रेडियो बटन्स। नाउ स्टूडेंट्स, आप में से कोई बता सकता है कि रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअल में? व्हाट इज अ चेक बॉक्स एंड व्हाट इज अ रेडियो बटन? हरी अप स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू टेल? यस, वेरी गुड। चेक बॉक्सेस में क्या है बेटा कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सभी चेक बॉक्स को एक साथ चूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हॉबीज का कॉलम है, तो आपको रीडिंग भी पसंद है, प्लेइंग भी पसंद है, लिसनिंग म्यूजिक भी पसंद है, तो आपने एक साथ सबको क्या किया, ओके कर दिया, ठीक है। तो ये सारा एक साथ सेलेक्ट हो गया। बट स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे एमसीक्यू है, आपकी क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 में कोई एक ही सही होता है, तो आपने इसको फर्स्ट वन को करेक्ट लगाया, तो रेडियो बटन में जैसे ही पॉइंटर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आपको शो होगा। बट अगर आपको सडनली फील होता है कि नहीं, फर्स्ट वन वॉज रॉन्ग, अनदर ऑप्शन इज करेक्ट, राइट, तो आपको क्या करना होगा, अनदर ऑप्शन को क्लिक करना होगा। बट यहाँ पे चेक बॉक्स जैसी फैसिलिटी नहीं है। चेक बॉक्स में क्या था, आपने फर्स्ट चूज किया था, सेकंड भी चूज कर लिया, फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। बट रेडियो बटन में क्या है, अगर आपने फर्स्ट चूज किया है और सेकंड भी फिर से क्लिक कर दिया, तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अपने आप डीसिलेक्ट हो जाएगा। मीन्स अब ये सिलेक्टेड नहीं है, अब आपने क्या सिलेक्ट कर लिया है, नंबर 2 ऑप्शन। इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन? आई विल आस्क, ओके, सो जस्ट डू राइट और प्रिपेयर और ड्रॉ इट समवेयर। नाउ सी, by selecting the delete cascade radio button, the records of the particular student will be removed from the both table by default. What is by default means अपने आप क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। And the same applies to the update cascade. Update means आपने new student का record अपडेट करना है, then you will choose this one, this field. Okay students? Then the field in another table also require the modification. This is relation डायलॉग बॉक्स। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते, टेबल्स में कुछ ना कुछ अपडेशन चेंजेस कर सकते।